Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking the lecture number 5.7 for the chapter number 5. Subject is nanotechnology. So, the topic of our today's discussion is the surface modifications by friction stir processing and its applications. So, in the previous series of the lecture, we try to discuss the various things which is based on the surface modifications. We are discussing the many of the techniques, right? In this chapter, and this is the last kind of the surface modification technique which is used for the to enhance the surface modification or the surface properties or the surface qualities. So this is this kind of the techniques, and let's start. So basically, before starting the discussions of the friction stir processing, or we can say that the FSP, so it is a kind of the advanced joining and processing technology, or we can say that it is a kind of the technology which is under the categories of the advanced welding and joining processing. So this is a very bright future for the upcoming time to enhance, to change, to modify the surface properties with using the friction stir process. Here in this process we are using the certain kind of the tools, and for to change the certain kind of the we are using certain kind of the technologies or certain kind of the techniques to enhance the surface properties, and we are using certain kind of the frictional heats and the sterilizations method. Sterilization, that means to dissolve. So sterilization, that means to stir, to mix that surface particles on the top of the surface, and it will be enhancing the surface properties. So let's start the discussions of the friction stir processing. So this is the content of our today's outlines. So first, which is the introductions of the friction stir processing, then the working principle of the friction stir processing, applications of the friction stir processing, conclusions and references. So let's start with the introductions of the friction stir processing. Friction stir processing, or we can say that the FSP, is a novel surface modifying technique that provide a microstructural modifications and control in the near surface layer of the metal components. तो मैं आपको आसान लैंग्वेज के अंदर अगर समझाने की कोशिश करूं तो फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग जो है एक नोवेल टेक्निक जो है वो सरफेस मॉडिफिकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो जानी जाती है. इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली होता क्या है, तो ये एक्चुअली जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, ये जो है वो माइक्रो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस के अंदर जो है वो काम करती है, और एक कंट्रोल मैनर के अंदर आप सरफेस के जो नियर सरफेस जो एरिया है, यानी जो सब सरफेस लेयर बोला जाता है, उस लेयर के अंदर जो है वो मेटल कंपोनेंट को जो है वो मॉडिफाइड करके आपका सरफेस मॉडिफिकेशन प्रोसेस करने हेतु इस तरीके का प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है. A friction stir processing is provide the ability to thermomechanically process selective locations on the structural surface and to some considerable depth to enhance the specific properties. तो यानी ये फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग विच इज प्रोवाइड द एबिलिटी ऑफ द थर्मोमेकेनिकली प्रोसेस, राइट. ये इस प्रोसेस के अंदर हम लोग थर्मोमेकेनिकली, थर्मल दैट मीन्स वी आर यूजिंग हियर द फ्रिक्शनल हीट, एंड मैकेनिकली एक्शंस दैट मीन्स द स्टरिलाइजेशन एक्शंस, राइट. इस दोनों को मिला के हम लोग एक सिलेक्टिव लोकेशन के ऊपर जो है वो एक स्ट्रक्चरल सरफेस के अंदर एक कंसिडरेबल डेप्थ के अंदर जो है उसका सरफेस प्रॉपर्टीज़ जो है वो एनहांस करने की कोशिश इस प्रोसेस के अंदर, फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग करते हैं. आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं, राइट. मैं और एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे एक टूल है जो थर्मोमैकेनिकल एक्शन से काम कर रहा है, यानी वो अपना
हाई स्पीड रोटेशन से वो रोटेट कर रहा है, यानी ये रोटेट करता करता जो है वो आपके मेटल प्लेट के साथ जो है वो टच करेगा तो दोनों के बीच जो है वो फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन जो है वो एक हीट जनरेट करेगा। उस हीट को यूज़ करते हुए, यानी ये हो गया आपका थर्मल पार्ट, और जो है वो सरफेस के ऊपर वाले जो कंपोनेंट्स है, सब सरफेस लेयर के ऊपर जो भी आपके माइक्रोस्ट्रक्चरल कंपोनेंट रहेंगे, उस कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे एक स्टरीलाइजेशन के थ्रू एक पर्टिकुलर जो आपका पिन डेप्थ रहेगा उस एरिया के थ्रू जो है वो एक आपका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एनहांसिंग जो है वहाँ पे प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को जो है वो फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग जो है वो बोला जाता है। फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग was developed which is based on the basic concept of the friction stir welding। यानी ये जो प्रोसेस है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रोसेस जो है वो एडवांस वेल्डिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेसिंग के अंदर आता है। यानी ये जो प्रोसेस है फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग जो है वो एक कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ था फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग के अंदर से, राइट। ये फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग जो है वो एक तरीके का सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कैटेगरीज के अंदर जो है वो आता है। बट द FSP इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ लोकल माइक्रोस्ट्रक्चरल एंड डजंट जॉइन द मेटल्स टुगेदर। पर आप यहाँ पे समझिए कि आपका जो फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग जो है वो जॉइनिंग पर्पस के लिए नहीं यूज़ होता है, आता है उस कैटेगरी से। उसका जो बेसिक कंसेप्ट जो है, राइट, कंसेप्चुअल थिंकिंग जो है वो वेल्डिंग से लिया गया है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग से। पर इस प्रोसेस का बेसिकल यूज़ जो है वो यूज़ होता है टू मॉडिफाई द लोकल माइक्रोस्ट्रक्चर, जो सरफेस के ऊपर लेयर के अंदर जो एक लोकल माइक्रोस्ट्रक्चरल एरिया है उसको मॉडिफाई करने हेतु जो है इस प्रोसेस का जो है यहाँ पे यूज़ होता है। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद दिस डेफिनेशंस। अब ये प्रोसेस कैसे काम करती हैं? सो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग। यहाँ पे आप एक स्कीमेटिकल आपको फिगर दिया गया है, राइट। आप फिगर को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको आसान लैंग्वेज के अंदर जो है इस फिगर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक टूल आपको दिख रहा है ब्लू कलर का। उस ब्लू कलर के टूल जो है उसके बेसिकली 3 पार्ट है, राइट। एक जो है जो सबसे लंबा जो वाला पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज ए होल्डर। वो आपके मिलिंग मशीन के अंदर कॉलेट के थ्रू जो है वो होल्ड करने के हेतु उस हिस्से का जो है वो यूज़ होता है। उसके नीचे वाला पोर्शन जिसका राउंड पोर्शन जो डायामीटर जो है वो कंपेरेटिव उससे पहले से बड़ा है, उस पोर्शन को जो है उसको शोल्डर जो है वो बोला जाता है। वो एक्चुअली जो है वो फ्रिक्शन डेवलप करके एक तरह से स्टरीलाइजेशन के पर्पस में जो है वो काफ़ी जो है वो हेल्प करता है। और तीसरा छोटा सा हिस्सा आपको नीचे जो दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज ए पिन, PIN। उस छोटे से हिस्से को जो है वो पिन बोला जाता है। पिन जो है वो बेसिकली जो है उसका नॉर्मली डायमीटर जो है वो 1 से 2 mm 3 mm तक रहता है, उसका डायमीटर इतना रहता है, और लेंथ जो है वो 5 to 6 mm 7 mm तक उसका वो डिसाइड होता है कि आप किस थिकनेस की प्लेट के लिए, राइट, प्लेट के थिकनेस के ऊपर जो है वो पिन का लेंथ और डायमीटर जो है वो बेसिकली डिसाइड होता है। वो जो है टूल एक बार मिलिंग मशीन के अंदर होल्डर के थ्रू जो है वो कॉलेट के अंदर फिक्स हो गया। जैसे ही जो है वो आपका मिलिंग मशीन का जो है वो कॉलेट जो है वो आप उसका रोटेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे तो आपका टूल जो है वो घूमेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको डाउनवर्ड मूवमेंट देते हुए जो है वो आप मेटल के साथ उस पिन को वहाँ पे जॉइन करने की यहाँ पे टच करने की कोशिश करोगे। जैसे ही वो टच होगा तो वो धीरे धीरे जो है वो मेटल को उस एक पहले उसका एक पिन टू जो आपका प्लेट है वो कांटेक्ट हुआ, राइट, वो कॉन्स्टेंटली टच करेगा। इसलिए क्या करेगा, पिन जो है उसके अंदर फ्रिक्शनल हीट डेवलप हुआ। अब उस फ्रिक्शनल हीट से जो है वो आपका मेटल जो है जहाँ पे वो पिन टच करे वहाँ पे वो सॉफ्ट होता चला जाएगा, और सॉफ्ट होते होते जो है वो वहाँ पे पिन जो है वो धीरे से जो है वो इंसर्ट करने की कोशिश करेगा। तो पिन कितना जाएगा अंदर, तो पिन का जो है वो लेंथ
पिन का जो लेंथ वो प्लेट के लेंथ से हमेशा कम होता है, राइट। इस वजह से वो एक थ्रू होल जो है वो डेवलप्ड ना हो पाए, राइट। तो उसका लेंथ हमेशा आपके जो थिकनेस ऑफ प्लेट है उससे हमेशा कम रहेगा। तो जैसे आपका थिकनेस है 5 mm है, तो आपका पिन का लेंथ जो रहेगा वो पिन का लेंथ रहेगा नॉर्मली 5.5 और 4.5 to 4.6, यानी 4 mm जो है वो प्लेट थिकनेस से 0.4 mm जो है वो प्लेट थिकनेस से कम होगा। जैसे ही वो पूरा इंसर्ट हो जाएगा तो अब क्या करेगा, तो शोल्डर जो है वो शोल्डर इसके साथ अब प्लेट के साथ टच होने लगा है, राइट। अब एक बार वो टच हो गया, वहाँ पे मेटल सॉफ्ट होने लगी, राइट। अब सॉफ्ट होने के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड एक डिरेक्शंस के अंदर उसको ट्रैवल करवाएंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे मेटल जो है वो आगे आगे भी उस डायरेक्शन में स्टरीलाइज यानी मिक्सर कैसे काम करता है उसी तरीके से ये टूल जो है वो पिन के साथ वो अंदर जो है वो मिक्स कर रहा है, उस एरिया को जो है वो सर्टेन लोकेशन एरिया को मिक्स करता हुआ जो है वो आगे जा रहा है। और फ्रिक्शनल हीट भी है तो थर्मोमैकेनिकल एक्शंस हो रहा है। इसी तरीके से वहाँ पे एक माइक्रोस्ट्रक्चरल जो है वो एनहांसमेंट इस प्रोसेस के अंदर जो है वो होता है। तो ये जो है वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेट्स स्टार्ट। अब राइटअप के अंदर क्या लिखा है उसको आप आपके साथ समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशली डिज़ाइन ए नॉन कंज्यूमेबल, जो टूल जो है वो प्रोसेस के अंदर कंज्यूम नहीं होता, इसलिए इस टूल को नॉन कंज्यूमेबल टूल बोला जाता है। नॉन कंज्यूमेबल सिलिंड्रिकल टूल इज रोटेटेड एंड प्लंज्ड, यानी वो इंसर्ट करेगा इनटू द सिलेक्टेड एरिया, आपने जो एरिया को सिलेक्ट किया है वहाँ पे वो इंसर्ट करेगा, प्लंजिंग होगा उसका, टू द फ्रिक्शन प्रोसेसिंग एंड रिक्वायर्ड लोकेशंस विद इन अ प्लेट और द शीट। Tool has a small diameter pin with a concentric larger diameter of the shoulder. टूल के अंदर एक छोटा डायमीटर वाला पिन होता है और एक कॉन्सेंट्रेटिवली एक लार्जर डायमीटर का शोल्डर होता है। अ टूल शोल्डर एंड लेंथ ऑफ द एंट्री प्रोब कंट्रोल द पेनिट्रेशन डेप्थ, राइट। जो टूल शोल्डर्स एंड लेंथ ऑफ द एंट्री ऑफ द प्रॉब विच इज कंट्रोल द पेनिट्रेशन डेप्थ, यानी मैंने आपको वही चीज़ बताया कि आपका वो पिन कहाँ तक पेनिट्रेट करेगा, तो पिन का पेनिट्रेशंस जो डेप्थ होगा या फिर एक तरीके से लेंथ होगा वो आपके प्लेट की थिकनेस से थोड़ा कम होगा, इसलिए वो वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। पेनिट्रेशन डेप्थ को वो शोल्डर जो है वो एक तरीके से कंट्रोल करता है, उसके आगे जो है वो अब पिन जो है वो घुस नहीं सकती, राइट। व्हेन द टूल इज डेस्केंडेड टू द पार्ट, जैसे वो इंसर्ट हो गया, आप देख लिए यहाँ पे आपको छोटा सा नीचे मैंने एरिया ड्रॉ करके बताने की कोशिश की है। जैसे वो इंसर्ट करना है एक, यानी वो जो आपको थोड़ा सा हल्का लाल भाग जो दिख रहा है वो एक फ्रिक्शनल हीट के थ्रू दिख रहा है, राइट। द रोटेटिंग पिन इज कॉन्टेक्ट द सरफेस रैपिडली, द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टूल पिन एंड द मेटल सरफेस दैट हीट्स एंड सॉफ्टन अ स्मॉल कॉलम ऑफ द मेटल। वो फ्रिक्शनल हीट के थ्रू जो है वो मेटल जो है वो दोनों जो पिन जो है कंपेरेटिवली आपका जो पिन का मटेरियल होगा वो आपके प्लेट के मटेरियल से ज़्यादा हार्ड होगा, यानी वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो भी होगी वो भी अच्छी होगी। नाउ रोटेटिंग टूल विच इज प्रोवाइड ए कंटिन्यूस हीटिंग टू दी वर्क पीस, राइट। वो रोटेटिंग पिन जो है वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूस जो है वो हीटिंग भी जो है वो वर्क पीसेस को प्रोवाइड करवा रहा है। सेकेंड, ए प्लास्टिसाइजिंग दी मेटल, वो मेटल को जो है वो एक तरीके से उसको प्लास्टिसिटी स्टेज के ऊपर भी लेके जा रहा है। एंड ट्रांसपोर्टिंग अ मेटल फ्रॉम अ लीडिंग फेस ऑफ द पिन टू इट्स द ट्रिलिंग एज। अब वो साथ में जो सॉफ्ट हुई जो हो गई हुई जो मेटल है उसको एक तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो जब वो ट्रैवल करेगा तो वो सॉफ्ट मेटल को उसके साथ जो है वो स्टर करके आगे आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट एक एंड से लेके जो फेस एंड से लेके ट्रिलिंग एज तक जो है वो आपका जो शोल्डर है, वो जो पिन है, आपका टूल है, वो उस डायरेक्शंस के अंदर जो है वो ट्रैवल करेगा।
तो वो पूरा जैसे वेल्डिंग के अंदर जो एक आपका वेल्ड पास जनरेट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक रिपल फॉर्मेशंस वाला जो है एक यहाँ पे आपका रिपल जितना डायमीटर शोल्डर को होगा उस एरिया को आप उसको माइक्रोस्ट्रक्चरल एनहांसमेंट उस एरिया का जो है यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर आप कर सकते हो। When the shoulder is contact to the metal surface, जब वो शोल्डर जो है वो कांटेक्ट करेगा, आप देख लीजिए अब पिन जो है वो पूरा इंसर्ट हो चुका है, राइट। अब शोल्डर जो है वो यहाँ पे टच होने लगा है। इट्स रोटेशन इज क्रिएट द एडिशनल फ्रिक्शनल हीट। अब उसका रोटेशन जो है वो क्या करेगा, तो कि एडिशनल फ्रिक्शनल हीट जो है वो जनरेट करेगा, क्योंकि एक लार्जर डायमीटर जो है वो अब प्लेट के साथ कांटेक्ट में है। लार्जर डायमीटर जो है वो प्लेट के साथ कांटेक्ट में है, तो इसका सीधा जो है वो रेप्लिकेशंस क्या होगा कि फ्रिक्शनल हीट जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा पहले से। प्लास्टिसाइज एंड लार्जर सिलेंड्रिकल मेटल कॉलम अराउंड द इंसर्टेड पिन। सो एक तरीके से ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शनल हीट और ए प्लास्टिसाइज जो है वो एरिया आपका बढ़ जाएगा ड्यू टू द लार्जर सिलेंड्रिकल मेटल कॉलम्स एंड द इंसर्टेड पिन। द शोल्डर इज एडिशनली प्रोवाइड ए फोर्सिंग फोर्स। अब वो ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करेगा, फोर्सिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा एंड कंटेन अपवर्ड मेटल्स फ्लोज कोज बाय द टूल पिन। अब वो मेटल के जो इसके फ्रिक्शनल हीट से जो मेटल जो है वो हीट हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, उसके फ्लो को जो है वो पिन की मदद से एक तरीके से वहाँ पे कंट्रोल करेगा, अपवर्ड फ्लो उस तरीके से कंट्रोल करेगा। ड्यूरिंग द एफएसपी आप देख लीजिए अब जो है वो ट्रैवलिंग जो है वो उसका होने लगा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शंस के ऊपर। आप देख लीजिए जितना शोल्डर का जो है एरिया है, डायमीटरल एरिया है, पेरिफेरिकल एरिया है, उतना एरिया जो है वो आप यहाँ पे सरफेस एनहांसिंग और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एफएसपी द वर्कपीस एंड अ टूल्स आर मूव रिलेटिव टू ईच अदर सच दैट द टूल इज ट्रांसवर्स with the overlapping passes until the required area is to be processed। आप उसको वहाँ तक जो है उतने टाइम तक जो है उसको ट्रैवल करवा सकता है जहाँ तक आपका पूरा एरिया जो है वो ओवरलैपिंग पासेस के थ्रू जो है वो एक प्रोसेस्ड ना हो जाए, राइट। द प्रोसेस्ड जोन इज कूल। अब क्या करेगा कि आप जैसे आपका एक एंड से दूसरे एंड तक पिन चला गया तो आप धीरे धीरे जो है वो आप शोल्डर को अप लेने लगेंगे, राइट, अप लेने लगेंगे। उसके बाद आपका उतना एरिया प्रोसेसिंग हो चुका है, उतना प्लेट प्रोसेस हो चुका है, राइट। अब वो धीरे धीरे जो है वो आपका प्लेट जो है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। द प्रोसेस्ड जोन इज कूल विदाउट द सॉलिडिफिकेशन। उसके अंदर जो है वो आपको एडिशनल कोई सॉलिडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एज देयर इज़ नो लिक्विड फॉर्मिंग ए डिफेक्ट फ्री क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर मेटल जो है वो लिक्विड कंडीशंस के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस को सॉलिड स्टेट प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि आप मेटल को सॉलिड स्टेट में ही होते हुए ही इसका एक ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेटल जो है वो लिक्विड कंडीशंस के अंदर नहीं जा रहा है। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट ये हमें क्रिएट करके देता है कि इस प्रोसेस के अंदर आप डिफेक्ट फ्री आपका रिक्रिस्टलाइजेशंस हो जाएगा and a fine grain microstructure is developed in this process। इस प्रोसेस के अंदर एक डिफेक्ट फ्री और एक तरीके से फाइन ग्रेन माइक्रोस्ट्रक्चर जो है वो इस प्रोसेस के अंदर आपके वहाँ डेवलप्ड होते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग? सो लेट्स स्टार्ट some of the basic applications of the friction stir processing. The friction stir processing has shown as an effective technique in the following applications। friction stir processing को इन नीचे बताए दिए गए जो फील्ड के अंदर इस टेक्निक को जो है वो इफ़ेक्टिव एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो लिया जा सकता है। पहला हो गया आपका टू फैब्रिकेट द सरफेस कंपोजिट्स। आपको सरफेस कंपोजिट अगर फैब्रिकेट करना है तो उस फील्ड के अंदर जो है वो फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग आपको बहुत बड़ा जो है वो एप्लीकेशन के तौर पे जो है वो वहाँ पे रोल जो है वो आपके वहाँ पे प्ले कर सकता है।
सेकेंड आपका हो गया टू रिफाइन द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट लाइट अलॉय। अगर आपके पास कोई कास्टेड अलॉय है, लाइट अलॉयज है, उसको आपको माइक्रोस्ट्रक्चरली जो है वो रिफाइन करना है, राइट। उसके माइक्रोस्ट्रक्चर्स आपको कोर्स ग्रेन है तो फाइन ग्रेन रिफाइनमेंट चाहिए। तो वैसे एप्लीकेशंस में फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग जो है वो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन फील्ड के तौर पे वहाँ पे उभर के आ सकता है, right? Is it clear? Right? To produce a fine grain microstructures which exhibits the superplasticity, आपके यहाँ पे जो है जो भी एक फाइन ग्रोन माइक्रोस्ट्रक्चर्स जो है वो जहाँ पे वो डेवलप्ड हो रहा है वो एक आपके वहाँ पे जो है उस एरिया के अंदर एक सुपर प्लास्टिसिटी जो है वो एग्जिबिट्स करते हैं। अब सुपर प्लास्टिसिटी क्या है वो हम नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर के अंदर ये इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस फ्रिक्शन स्टर प्रोसेसिंग, राइट। So it is one of the part of the friction stir processing, so which is exhibit the super plasticity. So these are the applications of the friction stir processing. So in these lectures we try to understand the basic things of the in this lecture we try to understand the basic things of the basic process of introductions of the friction stir processing, working principle of the friction stir processing, how the whole process is working step by step. I will explain with the detailed figures. I will explain what kind of the tool working is in this process, and lastly we discuss the applications of the friction stir processing, right. I hope you all are understand this process is very well. Still, if you have any kind of the questions, doubt regarding these lectures, you can ask me in the comment sections. I will definitely solve your queries in the next series of the lectures. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture. After watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment sections, which is counted as your online attendance. Thank you so much.